So today we'll see the spring system problem. Okay, so and you can extend the spring system problem to the general problem. So let us see how we can do. So we will do with the with an illustrative example basically. So let me, because you can also remember the theoretical steps, but an illustrative example will be helpful, I believe. So instead of doing the theoretical, so we can do directly the numerical steps. So basically, so there is a spring system. As we can see, the spring system is like this. So let us assume that this is a, what is this? And this is a support which I am talking about. Okay, so from here we have a straight line. Then spring. ये क्या है भाई? स्प्रिंग है. Yes. और ये यहाँ तक खींच के दे दिया स्प्रिंग को. Then choose another one color. Okay, so this is another one. Just drawing it very carefully because बहुत सारे गलत कैलकुलेशन हो जाते हैं. नहीं, मतलब गलत फिगर निकल जाता है. So, okay, this is the system that we have. Okay, so in this system, what we are going to do in this system, now please tell me how many nodes are there in the system? Kuch andaza? Can anybody tell me how many nodes will be there in the system? 2. 2 क्या? नहीं भाई, देखो 4. ये 1 है, ये 1 नंबर का नोड है, ये 2 नंबर का नोड है, ये 3 नंबर का नोड है, तो ये 4 नंबर का नोड है. फिक्स है तो नोड भी मतलब ये करने का क्या? Yes, so they are nodes. I mean, whether they are fixed or moving, it doesn't matter. They are still nodes. Okay. I mean, in the sense of finite element methods, whether they are fixed or moving, they are still nodes. Okay. Okay. Now the thing is, how many elements are there? How many elements are there? Can you tell me? 3. हाँ, तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ क्यों आ रहा है? So there are 3 elements. Okay. Fine. अच्छा. तो अभी 3 अलग-अलग स्प्रिंग है, तो 3 अलग-अलग स्प्रिंग कांस्टेंट्स होंगे. करेक्ट है ना? So I'm trying to give you the problem. Just I'm trying to give you the problem, and we are having spring constant here. This is the spring constant for this particular spring. The blue spring is given to be K1. Okay. Then the green spring, उसका जो है, उसका spring constant क्या दिया? K2. फिर उसके बाद उसका जो रेड स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया? K3.
Okay, so K1, K2, K3, these are three different springs which are there. Now you need the values, so I will just put down the values. Okay, so K1 जो है ये दिया हुआ है 1000. ये क्या है भाई, ये क्या है n, ये क्या है n, क्या होता है न्यूटन पर mm न्यूटन न्यूटन. फोर्स यूनिट है ना लोड फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट लेंथ K2 जो है वो दिया हुआ है 2000. देखो यार, तुम अपने माइक में फूंक मत मारो यार, मेरे कान में फूंक लग रहा है. And K3 is given to be 2000 Newton per mm. Okay. अच्छा, now tell me, ये spring ये समझ में आया? So what is happening here, you can understand, right? यस सर Okay, now what happens is at node 3, तो अपन क्या कर रहे हैं at node 3, so I'm just writing this at node 3, force P is applied. So what is happening is at node P we are applying force P, and that force P equal to 1000. अच्छा, कोई ये बोल सकता है कि जो स्प्रिंग है ये कहाँ के स्प्रिंग होंगे? कुछ मतलब ऐसा अंदाजा, ये बॉल पेन का स्प्रिंग तो नहीं है ना? So have you noted down the problem? So force P is applied, इसका मतलब क्या हुआ? Please understand, force P का applied हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि at node 3 there is a force P being applied in this direction. Okay, this force is P. Okay. तो एक बात बताओगे, ये जो फोर्स P है ये एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स It is an external. ठीक है. So you have to talk about external force being applied on. Okay. So अभी प्लीज अंडरस्टैंड, एक हम नोटेशन की बात करेंगे. सबसे पहले लेट अस क्लेरिफाई दिस नोटेशन. सो सपोज अपना जो स्प्रिंग है, कौन सा स्प्रिंग? जो ब्लू वाला स्प्रिंग. ओके, लेट अस लुक एट द ब्लू वाला स्प्रिंग इंडिविजुअली. वी आर गोइंग टू लुक एट ब्लू वाला स्प्रिंग. ये मेरा ब्लू वाला स्प्रिंग है. ओके, इसका ये है और इसका ये है. ओके, सो कैन यू टेल मी कि अब ये जो उसका स्प्रिंग का इंटरनल स्प्रिंग, मतलब अगर इंडिविजुअल बॉडी को कंसिडर करेंगे, वी आर कंसिडरिंग इंडिविजुअल बॉडी. सो इन दिस इंडिविजुअल बॉडी, दिस इज नोड नंबर 1 इन द बॉडी, दिस इज नोड नंबर 1, साइड नंबर 1 समझ लीजिए, एंड दिस इज नोड नंबर 2. ओके, इंटरनल बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 है. तो कैन यू टेल मी ये क्या होगा अभी? हाउ डू आई रिप्रेजेंट दिस? दिस इज ऑल्सो एट द सेम टाइम दिस इज एलिमेंट नंबर 1. ओके, तो फोर्स एट दिस पर्टिकुलर नोड, आई एम सेइंग फोर्स एट दिस पर्टिकुलर नोड एंड फोर्स एट दिस पर्टिकुलर नोड को मुझे रिप्रेजेंट करना है. सो हाउ डू आई रिप्रेजेंट? प्लीज सी दिस. आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय F
first element, sorry, first node and first element. So first element, ये ऐसा, okay, and this is second node and first element. In the same way, let us consider the second वाला spring. तो second वाला spring भी ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, okay, okay, and this is the first वाला side और ये अपना second वाला side है. तो यहाँ पर जो force होगा, how will I represent? I will say F1, but यहाँ पे क्या रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा F2 और यहाँ पे क्या रहेगा, correct, because this is the second element. अब ये कौन बताएगा मुझे थर्ड स्प्रिंग के लिए कैसा होगा? यहाँ का नोटेशन क्या होता है? F1 1 1 और यहाँ पे और 3 3 थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, और इधर क्या रहेगा? F2 3. करेक्ट है, ऐसा रहेगा वो. ओके, Yes. यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी पूछो. मयूरी, कोई प्रश्न? सर ये F1 F2 हमने अज्यूम किया है ना? एज्यूम नहीं, नोटेशन नहीं, अभी एज्यूम नहीं है, अभी कुछ भी एज्यूम नहीं है यहाँ पे. दीज आर नोटेशंस. ये नोटेशंस है. दिस इज आई एम जस्ट सेइंग नोटेशंस. समझ में आया? Yes sir. मतलब these P are- फोर्स की वजह से आई है क्या ये F1 F2? ये समझो, हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर जैसे ही मैं सिस्टम जो है बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम में रहता है, करेक्ट है ना मयूरी? इफ आई हैव एनी सिस्टम बाय डिफॉल्ट इट इज इन इक्विलिब्रियम. सिस्टम में लोड लगाया, फोर्स डाला, तो इट विल लीड टू फोर्सेस बीइंग जनरेटेड एट वेरियस नोड्स. ऐसा ही होगा ना? Yes. यस सर. तो अभी क्या एक बात बता सकते हो क्या मुझे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, मेरा क्यूरियोसिटी है, ये एक्चुअल में फुल सिस्टम में, ये कंप्लीट सिस्टम में, ये वाला जो नोड है, ये जो नोड दिख रहा है कंप्लीट सिस्टम में, ये वाला कौन सा नंबर का नोड है? ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ जो दिख रहा है, ये कौन सा नंबर का नोड है? First number. ये फर्स्ट नंबर का नोड है. Yes. ये कौन सा नंबर का नोड है? Second. फिर ये कौन सा नंबर का नोड है? Third. सेकंड. Second. सेकंड. हाँ, सेकंड ही है ये. हाँ ये कॉमन कौन है. सा ये कॉमन है ना? ये कौन सा नंबर का नोड है? थर्ड. थर्ड. थर्ड है. ये कौन सा नंबर का नोड है? वो भी थर्ड है. ये भी थर्ड है. और ये Fourth. ये फोर्थ. इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड वाला जो नोड है उसमें दिस प्लस दिस होगा. टोटल जो फोर्स अगर हुआ तो दिस विल बी दिस प्लस दिस, करेक्ट? Yes sir. ये यस जो सर. थर्ड जो सेकंड नोड है इसमें भी फोर्स जो है दिस प्लस दिस होगा, राइट? Yes. ऐसा ही है ना? Yes sir. मतलब जॉइंट है ना. हाँ, चूंकि जॉइंट है. यस एग्जैक्टली. अभी तुम्हारा F21 जो है और F1 का जो साइन है, द डायरेक्शन है, वो ऑपोजिट हो सकता है, बट आई एम सेइंग इट्स अ रिजल्टेंट, राइट? क्लियर है क्या? यस सर. फोर्स में रिजल्टेंट होता ना. Yes sir. हाँ, अभी एक बात बताओ मुझे, लेट अस नाउ गो डाउन अ बिट, थोड़ा सा एक एक करके सॉल्व करेंगे अपन.
तो यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब ये बताओ कि इस सिस्टम का इक्वेशन कैसा दिखता है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं क्या करता हूँ, फोर्स एट नोड 1 को मैं F1 बताता हूँ, फोर्स एट नोड 2 को मैं सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो एक नोटेशन याद रखो आप, नोटेशन ऐसा है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल फोर्सेस देन द global forces are represented as in capital letters, the local forces are represented in small letters. ओके, सो थर्ड नोड पे जो फोर्स है वो कैपिटल F3, फोर्थ नोड पे जो फोर्स है वो कैपिटल F4, सेकेंड नोड पे जो ग्लोबल फोर्स है वो F2 कैपिटल F2, एंड ग्लोबल फोर्स एट कैपिटल ग्लोबल नोड 1 इज कैपिटल। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट समवेयर हियर, ऐसा लिख देता है, ग्लोबल फोर्सेस quantity, global quantities are written in upper case. Upper case का मतलब capital letters. लोअर केस। हाँ, लोअर केस। तो अपर केस एंड लोअर केस का ये नोटेशन लिख लो, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, दैट ये ऐसा है ऑलवेज। तो इसलिए अगर ग्लोबल फोर्स की बात कर रहे हैं तो कैपिटल F1 है, और लोकल फोर्सेस की बात है तो स्मॉल F1 स्मॉल F2 स्मॉल F1 स्मॉल F2 ऐसे करके चल रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो मैं क्या कर दिया, मैंने डायरेक्टली लिखा कैपिटल F1 कैपिटल F2 कैपिटल F3 कैपिटल F4। इसमें से मुझे ढूंढना है, मुझे ये ढूंढना है राइट नाउ कि अगर मैंने नोड नंबर 3 पे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, नोड नंबर 3 पे मैंने फोर्स P लगाया, जैसे ही मैंने फोर्स P लगाया देयर विल बी फोर्सेस क्रिएटेड हियर, फोर्सेस क्रिएटेड हियर, फोर्सेस क्रिएटेड हियर, ओके, एट नोड नंबर 4। नोड नंबर 3 पे तो मैं फोर्स लगा रहा हूं एक्सटर्नल, ओके। अब टेल मी वन थिंग, एक ध्यान से चीज बताना, ये नोड नंबर 2 पे जो फोर्सेस आएंगे विल दे बी इक्वल इन बोथ द साइड्स और नॉट? हेलो, सवाल समझ में आया क्या? यस सर। Suppose I have exerted, right now system is in equilibrium, I have exerted an external force P in the x direction, positive x direction मैंने force apply किया, so each force, each action will have an equal opposite reaction, isn't it? यस सर। हाँ, equal and opposite reaction, वो हमेशा याद रखो कि equal and opposite reaction का system आएगा कहीं ना कहीं, okay. So let us see what is going to happen. Now we are going to write system-wise equations. System-wise equations का मतलब I am going to write system equation for spring number 1. Okay? And please ध्यान में रखो, spring number 1 पे नोड 1 पे ये F11 है, नोड 2 पे F21, करेक्ट है? ऐसे ही है ना? So we are going to write system equation for spring number 1. Now, do you remember what was the system equation for a spring? कैसे लिखते थे अपन स्प्रिंग का? जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है, वी आर गोइंग टू राइट अ स्टिफनेस मैट्रिक्स। स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं स्प्रिंग का? के, यहाँ पे के रहेगा, K1 रहेगा,
K1. हाँ, क्यों K1 रहेगा? वाई K1? पहले स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पहले स्प्रिंग का जो मेरा स्टिफनेस या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, सो दैट्स वाई यहाँ पे K1 रहेगा। सो K1 minus K1, okay, and then minus K1 and K1. Okay, now I'm going to write U1 and U2. सर ये मैट्रिक्स कैसा बना समझा नहीं, मतलब मैट्रिक्स कैसे बनाना नहीं समझा? ओके, मैं समझाऊं? यस। ओके, तो एक काम करते हैं, वहाँ अगले पेज पे जाते हैं, सो दैट वहाँ पे ये क्या हुआ, अगले पेज पे जाते हैं। ओके, तो अपन पहले समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बना। सो मैट्रिक्स कैसे बना, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये मेरा स्प्रिंग है। ओके, तो ये मेरा स्प्रिंग है। ओके, यस ये नोड है और ये भी एक दूसरा नोड है, करेक्ट। मान लो इस नोड पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज U1। क्या बोला मैंने? इस नोड पे डिस्प्लेसमेंट U1 है और इस नोड पे डिस्प्लेसमेंट U2 है। ओके, अब स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या दिया हुआ है तुम्हारा? K। Now your spring may force, now when you are talking about forces acting on a spring, it is given as that K into the displacement, K into displacement। यस ओके, ऐसा फोर्स होता है, दिस द स्प्रिंग फोर्स है, ऐसे कैलकुलेशन है। अब यस अगर दिस K into डिस्प्लेसमेंट है तो इस नोड पे, इस पर्टिकुलर नोड पे फोर्स कितना लगेगा? F divided by K। क्यों F divided by K? What is the force? K into U1। U1। ओके, इस नोड पे डिस्प्लेसमेंट U2 है, इस नोड पे फोर्स कितना रहेगा? K into U2। K into U2। क्लियर ना सरफराज? यस ओके, अब दो कंडीशन हो सकते हैं। कैसा दो कंडीशन? प्लीज अंडरस्टैंड दैट द स्प्रिंग कैन हैव ओनली टू कंडीशंस। वन इज द कंप्रेशन कंडीशन, ओके, एंड द दूसरा एक्सपेंशन कंडीशन। करेक्ट? यस सर। Yes. नाउ एक्सपेंशन कंडीशन में क्या होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। एक्सपेंशन का मतलब ये जो फोर्स है, दिस पर्टिकुलर फोर्स is acting in this direction and this force is acting in the opposite direction, correct ना? यस इसका मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग कैसा हुआ? माइनस K U1 प्लस K U2, ऐसा हुआ क्या? यस सर। अब कंप्रेशन केस में देख लेंगे। कंप्रेशन केस में दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ऐसा हुआ कि नहीं? यस सर, लेफ्ट नेगेटिव सो राइट पॉजिटिव। therefore यहाँ पे क्या रहेगा? Ku1 टोटल फोर्स ऑन द स्प्रिंग माइनस Ku2। U2 लेफ्ट पक्का साइड। ना? पक्का ना? सो इफ अगर इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ लिखेंगे, दोनों सिस्टम्स को, दिस इज K इंटू U1 माइनस K इंटू U2, ऐसा है ना? सो सपोज मैं इसको ऐसा करता हूँ, आई राइट K माइनस K और इधर माइनस K ओके इंटू U1 U2, ऐसा लिख, तो क्या हुआ? यस सर, बराबर। बराबर है। And this will give me, because this is K into some force, this is K into some force, this is going to give me some F1 into and F1 and F2, ऐसा मिलेगा हमको। यस Yes, sir. ऐसा है, ऐसे ही है ना? यस Yes, sir. तो हाँ,
तो हम क्या करेंगे अभी ये, तो विल गो टू द प्रीवियस पेज नाउ। ओके, तो ये समझ में आया ना कैसे आया ये सरफराज? यस यस सर। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू talk about the first spring. So now you agree in the for the first spring what has happened first spring में कि मेरा जो मैट्रिक्स है वो कैसा दिखेगा, देखो दिस इज K1 माइनस K1 और माइनस K1 प्लस K1 and K1, K1 ऐसा है ना? यस This will be multiplied by U1 U2 displacement at node 1 and displacement at node, node 2 करेक्ट है? यस गलत तो सर नहीं लिखा इक्वल हुआ? नहीं बराबर है। हाँ, and that will be equal to, please understand, that will be equal to force at node 1 for element 1 and force at node 2 for element 1 1, ऐसे ही है ना? यस पक्का? Okay, यस now for the second element, this is for first element, second element के लिए क्या है? सेम आएगा सर, सिर्फ It will be एलिमेंट K1 चेंज K2 minus माइनस के K2 माइनस K2 plus K2 प्लस K2, okay, and यहाँ पे क्या रहेगा? सेम U1 U2 नहीं, हाँ U2 U3 है ना? हम्म क्यों U2 U3? Because spring number 2 is between 2 and 3. स्प्रिंग नंबर 2 जो है नोड नंबर 2 एंड 3 के बीच में है। देखो अभी ध्यान से देखो, लुक एट द फिगर प्लीज। ये जो स्प्रिंग नंबर 2 है ये नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 के बीच में है। स्प्रिंग नंबर 3 है नोड नंबर 3 और 4 के बीच में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ राइट नाउ, अभी जो U1 U2 की बात कर रहे हैं, तो ये नोड पे, दिस नोड नंबर 1 पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज U1, नोड नंबर 2 पे डिस्प्लेसमेंट इज U2, नोड नंबर 3 पे यू डिस्प्लेसमेंट इज U3 एंड नोड नंबर 4 पे डिस्प्लेसमेंट इज U4। U4 ओके, सो देयरफॉर स्प्रिंग नंबर 2 जो है, स्प्रिंग नंबर 2 में U2 और U3 लगेंगे। लगा कि नहीं लगा? यस सर लगा। हम्म तो अभी अगर ऐसा लगा है तो कैन यू टेल मी कि यहाँ पर राइट, अरे यार कलर 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 का बहुत पंगा हो रहा है। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या लगेगा? F1 F2 तो सही है, इधर क्या लगेगा? इन सेकंड एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट का, ये सेकंड एलिमेंट, पक्का ना? गलत तो नहीं लिखा मैंने? नहीं बराबर है सर। ये गलत लिख दिया मैंने। second element. Okay. Yes. Now what we do is, now we move to the third element. Now we are going to move to the third element. How will the third element look like? Third element कैसे दिखेगा? यहाँ पे K3 क्या रहेगा? K3 K3 minus K3 K3, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या रहेगा? K3 और यहाँ पे K3 K3, ठीक है, बराबर। और यहाँ पे क्या रहेगा? ये इधर क्या रहेगा? U3 U4 हाँ, U3 U4। वाई U3 U4? क्योंकि स्प्रिंग नंबर थर्ड जो है उसका हाँ, स्टार्टिंग नोड 3 है 3 और है, फाइनल वाला 4 है, मतलब 3 और 4 के बीच में थर्ड एलिमेंट। करेक्ट है ना? So basically this will become F1 and F2, and for which element now? थर्ड This is एलिमेंट for third element, this is for third element. Okay? अब प्लीज अंडरस्टैंड कि मुझे करना क्या है। करना यह है कि मुझे ग्लोबल सिस्टम मैट्रिक्स बनानी है। ओके, व्हाट डू आई वांट टू डू? आई वांट टू मेक द ग्लोबल सिस्टम मैट्रिक्स। सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन इज हाउ टू मेक yes, so question is
हाउ टू मेक द ग्लोबल सिस्टम मैट्रिक्स। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, टाइप करना मेरे लिए आसान पड़ रहा है। तो क्वेश्चन ये मेरा है कि हाउ टू मेक द ग्लोबल सिस्टम मैट्रिक्स। तो मुझे करना क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पे इन द फर्स्ट सिस्टम, इन द फर्स्ट सिस्टम यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो कौन से नोड के बीच में लटका हुआ है? U1 U2 हाँ, मतलब U1 U2 तो डिस्प्लेसमेंट्स है, 1 and 2 के बीच में लटका है ना? yes ओके, so what am I going to do? Please remember what am I going to do? I'm going just for the sake of writing, हाँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा, और यहाँ पे 1 लिखूंगा, और यहाँ 2 लिखूंगा। करेक्ट, इतना मैं करूंगा बस। यू अंडरस्टैंड? अब ऐसा ही कर, मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैंने 1 2 1 2 लिख दिया उधर। ओके, ये सिर्फ नोटेशनल है, आई एम जस्ट, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन, ये जस्ट नोटेशन। ये ऐसा ऐसा ये 1 2 लिख दिया मैंने, ये सिर्फ नोटेशन है, ये हमारे बाद में काम आएगा। नाउ अगेन, जो मेरा सिस्टम 2 है, वो सिस्टम 2 किस कौन कौन से नोड के बीच में लटका हुआ है? 2 and 3 2 and 3 तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ 3 लिखूंगा, और फिर यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा। हो गया बराबर? यस। ओके, नाउ अगेन टेल मी, इन द थर्ड मैट्रिक्स, थर्ड वाला जो सिस्टम है वो कौन कौन से चीज के बीच में लटका हुआ है? तीसरे और चौथे, थर्ड हाँ, and तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 3 4 3 4। लिखूंगा, और इधर भी 3 4 लिखूंगा। ऑलराइट, yes now we are trying to make the global system matrix. Okay, now it is the duty of our duty to make the global system matrix or global system matrix. Now, how many unknowns are there? Displacement, how many displacements are there right now? There are 4 displacements, 1 2 3 4. Okay, there are 4 displacements, that means u1 u2 u3 u4. Okay, so I should get 4 cross 4 matrix, ऐसा मिलना चाहिए मुझे। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, प्लीज अगेन आई विल गो बैक टू द डायग्राम। डायग्राम देखो कैसा है, मेरा डायग्राम है ऐसा वाला। सो इन दिस डायग्राम आई हैव गॉट u1, आई हैव गॉट u2, आई हैव गॉट u3 एंड यू गॉट u4। ओके, सो देन आई शुड गेट अ मैट्रिक्स। प्लीज अंडरस्टैंड, हमको मैट्रिक्स कैसा मिलना चाहिए, हमको एक मैट्रिक्स ऐसा मिलना चाहिए, दिस, ये k है, मिलना चाहिए सर, k है, एक u वाला मैट्रिक्स है, U दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, and this is the force matrix that we should get. Okay, so ये जो K है, ये जो अपना ये what do you call it, the stiffness matrix that we call it, इसका order 4 cross 4 है, order is 4 cross 4. We know that there are 4 U's, so this order is 4 cross 1. 4 cross 1 और इसका भी order क्या होगा? 4 cross 1 Correct है ना? So this is how it is. Okay, I must get this kind of matrix K into U equal to F, ऐसा मिलना चाहिए। Is it clear? समझ में आया क्या? yes yes sir ओके, सो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है, जो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेरा 4 क्रॉस 4 आना चाहिए, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स मैं कैसे बनाऊंगा? ओके, सो नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक द स्टिफनेस मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख देते हैं सर, इतना बड़ा एक मैट्रिक्स बना देते हैं, और उस मैट्रिक्स में अपन क्या लिखते हैं, 1 2 3 और यहाँ 4 लिखते हैं। ओके, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, इधर 3, इधर 4 लिखते हैं। ओके, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, जस्ट मतलब क्या है ना कि ओवरराइट नहीं होना चाहिए, मैं बस क्या करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ। हाँ बोलो। सर वो K का जो मैट्रिक्स है वो 4/2 का आएगा ना? क्यों आएगा 4/2 का बस?
क्योंकि कितने रोज नोड है? 4 है, नोड कितने तुम्हारे? नोड 4 है सर, 4। 4 है ना, तो अगर नोड 4 है तो 4 + 4 आना चाहिए। यस सर, लेकिन कॉलम्स तो 2 ही है ना सर, मतलब कि देखो वेट वेट वेट, जस्ट वेट मिनट, यहाँ ध्यान से देखो, प्लीज सी दिस। ये ये जो है ये कितना है? 4/1, 4 रो 1 4 कॉलम। बाई 1 है ना, तो इसका मतलब इसमें जो है 4 कॉलम्स होना चाहिए, पक्का कि नहीं? ये अगर 4/1 है तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अगर यहाँ पे 2 कॉलम हुए तो मैं मर जाऊंगा ना यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा फिर? टू मल्टीप्लाई आई हैव टू हैव कंसिस्टेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हियर। सो अगर यहाँ पे 4 रोज है तो इसमें 4 कॉलम होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो हम 1 2 3 4 लिख दिया ना अपन ने। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, ऊपर देखो यहाँ 1 1 पोजीशन पे, 1 1 पोजीशन पे क्या है? K1. यहाँ पे क्या है? इधर इधर 1 1 पोजीशन है ये, यहाँ क्या है? K1. K1। K1। ओके ओके, 1 1 पोजीशन पे अपन क्या लिखेंगे? वी हैव गॉट K1। ओके, नाउ 1 2 पोजीशन पे, 1 Minus 2 K. देखो क्या माइनस लिखा है? K1। Minus माइनस K1. K1 ना पक्का? हाँ माइनस Yes, K1। yes. ओके ओके, चलो माइनस K1 लिख देते हैं, माइनस K1। सर अब ये मैट्रिक्स अपर केस में आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, मैट्रिक्स के अंदर जो वेरिएबल्स है, जो वेरिएबल्स है वो तो लोअर केस में ही है अभी, वेरिएबल्स अभी लोअर केस में है, ठीक है? वेट, जस्ट टू नॉट टू हैव अ कंफ्यूजन राइट नाउ। अभी अपन कंफ्यूजन नहीं करते, लेट अस कंटिन्यू विद व्हाट वी आर डूइंग। ओके, नाउ K1 अंदर, K1 अंदर K1 है, ठीक है? अभी 1 3 पे कुछ है क्या? देखो 1 3 पे, No, sir. राइट? 0. 1 3 कुछ है कहीं पे? तो एक कुछ कॉलम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नहीं है ना सरफराज? 0. 0 तो 1 4 पे 1 क्या है? 4 0. 0, 0. तो ही कॉलम है ना। ठीक है ना, 0 है। ओके, अब एक काम करेंगे, अब वी आर गोइंग बैक टू द अपर मैट्रिक्स। अब यहाँ देखो 2 1 पोजीशन पे क्या लिखा है? 2 1, माइनस K1। Minus माइनस K1. K1। पक्का ना? Yes. तो 2 1 पोजीशन पे यू हैव गॉट माइनस, K1 उसके ओके। बाद 2 प्लस K1। 2 2 पोजीशन पे क्या लिखा है? K1 प्लस K1। K1 प्लस K2। K2. यहाँ देखो 2 2 पोजीशन पे K1 है इधर Yes. फर्स्ट वाले में, और इधर 2 2 पोजीशन पे K2 भी K2 है. है कि नहीं? Yes, sir. यहाँ K1 भी है और Yes, इधर sir. K2 भी है, म्हणजे काय? म्हणजे इधर यहाँ K2 K1 तो लगेगा ही, एंड मुझे साथ में प्लस K2 भी करना पड़ेगा, ठीक है? इज इट ओके सरफराज? यस सर। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है 2 3, प्लीज लुक एट दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे 2 3 पोजीशन पे क्या है? 2 3 Minus माइनस K2. K2। माइनस K2, करेक्ट है, बिल्कुल। सो यू आर गोइंग टू हैव minus K2 here, no problem there. Now you have got 3 2, 3 2 पोजीशन पे क्या है देखो जरा, कैन यू सी 3 2 पोजीशन पे क्या है? माइनस इधर K2। माइनस Minus K2, K2. और कुछ तो नहीं है ना -3 2 पोजीशन पे? No, sir. So therefore you are going to write minus K2 here, minus। अच्छा, अभी 3 3 पोजीशन पे क्या है? अगेन गो बैक हियर, 3 3 पोजीशन K2 पे क्या प्लस है यहाँ पे? K3।
यहाँ K2 K2 है और plus उधर K3 K3 है। पक्का पक्का ना? Yes, sir. yes Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे what will happen? I will have K2 and I will also have K3 ना? पक्का? ओके, नाउ ये जो पोजीशन है, प्लीज सी दिस। अभी 3-4 पोजीशन पे क्या है? 3-3 कवर हो गया। 3-4 पोजीशन पे क्या है यहाँ पे? minus K3. minus K3 Minus K3, correct, you know? So you got minus K3 here, and similarly you got minus K3 here and K3 here. Okay? अब ये जो बाकी इलाके हैं, ये जो बाकी इलाका है ना खाली वाले, वहां पे क्या हो जाएगा? 0. 0. तो यहाँ पे 0, यहाँ 0, इधर भी 0 और इधर भी 0। अब समझ में आया सरफराज व्हाई इट इज 4x4? Yes sir, वो मतलब सेकंड और थर्ड रिपीट हुआ ना इधर, मतलब हाँ, जब यस एग्जैक्टली। वो रिपीट तो होने अभी के 4x4, हाँ, अभी ये 4x4 आ गया, करेक्ट है ना? नाउ अब ये जो 4x4 आया, नाउ टेल मी, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे होगा इसके साथ? ये जो है ये मेरे डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो माय डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, माय डिस्प्ले, ओके लेट मी यूज दिस कलर। ओके, द डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स इज, यहाँ पे U1 है, इधर U2 है, इधर U3 है, and this is U4. Okay, and that will be equal to the forces that you are going to apply. So now this, if I multiply this matrix with the displacement matrix, I should get the resultant forces available. Okay, I should get the resultant forces, isn't it? yes sir. yes अगर sir मैं ऐसा करूंगा Yes. तो मेरा जो resultant forces at F1, resultant forces at F2, resultant forces at node 3, resultant force at node 4, ऐसे ही है ना? Yes sir, चार Yes, इक्वेशन sir. चार। 4 इक्वेशन 4 अननोन। कितना मजा आया कि नहीं पता? ये एस्टैब्लिश करने में मजा आया कि नहीं? yes sir. अभी 4 इक्वेशन 4 अननोन। अभी एक बात बताओ, ध्यान से बताना मेरे को है, ये जो U1 है मेरा, ये जो डिस्प्लेसमेंट एट नोड 1, ये क्या है? क्यों पूछ रहा हूं मैं? लुक एट दिस डायग्राम। ये जो मेरा नोड है ये फिक्स्ड है कि नॉन फिक्स्ड है? फिक्स्ड है सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा शायद सर। Fixed. हाँ, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। U4 0 0 U4 भी 0 है, 0. U1 भी 0 है। पक्का है ना? U4 भी 0 है, yes sir. 1 भी 0 है। ये कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? सो अगर मेरा U1 0 है तो व्हाट विल हैपन? अगर मेरा F1 मुझे कैलकुलेट करना है तो हाउ विल आई कैलकुलेट? आई विल कैलकुलेट K1 इंटू 0 माइनस K1 इंटू U2, फिर 0 इंटू U3, फिर 0 इंटू 4 U4। 0 रिजल्टेंट 0 F1 0 हो जाएगा। नहीं ना भाई, क्या बात कर रहे? K1 इंटू U2 ना? minus K1 into U2 F1. हाँ, माइनस K1 इंटू U2, दैट इज माई F1, isn't it? सरफराज, Yes, is it sir. okay? यस सर। हाँ, अब अगर मान लो कि मुझे F2 कैलकुलेट करना है, तो मुझे F2 कैलकुलेट करना है। K1 इंटू ये 0 है, U1 K1 प्लस K2 इंटू U2 है, U2 फिर माइनस K2 इंटू U3 है समथिंग, ओके, फिर 0 इंटू U4 है, दैट विल गिव मी माई F2। F. पक्का है ना? एंड नाउ सपोज फॉर एग्जांपल अब मुझे F3 कैलकुलेट करना है, तो व्हाट विल हैपन? दिस इज 0 इंटू 0 पक्का है, U1 फिर U3 है, फिर K1 प्लस K3 इंटू U3 है, और U4 तो 0 है मेरा। तो राइट नाउ टेल मी, प्लीज टेल मी कि मेरे पास अननोन है कितने अभी राइट नाउ?
दो डिस्प्लेसमेंट, दो अननोन है तो सर, दो और दो अननोन है अभी, दो अननोन है। तो मुझे क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, ऐसा है कि भाई ये जो मेरा ओके, जो मेरा कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेट मी सी। तो जो मेरा कलर होना चाहिए वो सिर्फ इतने का होना चाहिए, ये जो पार्ट है ना मेरा, आई एम गोइंग टू ओनली कंसिडर दिस पार्ट। यस बोलो ऐसा है कि नहीं? यस Yes, सर, sir. एंड मुझे सिर्फ इससे लेना देना है, ये वाला जो पार्ट है U2 और U3, यस। कि नहीं? इससे ही मेरे को लेना देना है ना। यस तो अगर मुझे इससे ही लेना देना है तो मैं F2 और F3 निकाल सकता हूं। अब ये यस बताओ, हाँ अब सिर्फ ये बताना कि मैंने जब फोर्स लगाया था स्प्रिंग में, तो मैंने सेकंड नोड पे फोर्स लगाया था क्या? नहीं सर, नहीं लगाया। नो सर, तो मैंने कौन से नोड पे फोर्स लगाया था? थर्ड नोड पर। Third node. थर्ड नो। कितना? हाँ, थर्ड नोड पे फोर्स लगाया था। अब नाउ यू टेल मी द वैल्यूज। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अभी मेरा जो सिस्टम है वो ऐसा दिख रहा है राइट नाउ। ओके, कैसा दिख रहा है? सो यू हैव गॉट ऑन माय सिस्टम, ये मैं थोड़ा सा ऐसा रखता हूँ सो दैट आई गॉट दिस। सो नाउ यू हैव गॉट ऑन माय सिस्टम इट इज K1 प्लस K2। 2x2 मैट्रिक्स। हाँ, 2 by 2 मैट्रिक्स है यहाँ पे, ये K2 एंड हियर दिस विल बी माइनस K2। ओके, एंड हियर इट इज K2 प्लस K3 पक्का ये हो गया। नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय U2 and and U3, U3, 2 by correct? 1, Right, 2 by 1, and this will give me my F3 and F2 and F4। F. Now F2 and F3 रे। हाँ, F2 and F3। Now F2 मेरा 0 है राइट? F2 कैसे क्या Yes, 0 sir. होगा? F2 क्यों 0 है? क्योंकि मैंने नोड 2 पे तो फोर्स लगाया नहीं था। मैंने फोर्स कहाँ पे लगाया था? थर्ड नोड। F3. नोड 3 पे लगाया था, करेक्ट है ना? तो अब Yes. अपन क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1 एंड यू नो टेल मी। सर K1 आपने फोर्स थर्ड नोड पर लगाया था, तो F2 भी 0 होना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि मेरा जो F2 है वो 0 है, F3 जो है वो मेरा क्या है, गिवन इज 2000 राइट? नहीं 1000। F3 जो है 1000, करेक्ट है ना? अब मैं इसको भरूंगा। अब K1 क्या वैल्यू क्या है बताओ भाई? 1000 है। और K2 का वैल्यू कितना है? 2000। 2000 राइट? सो यहाँ पे ये 3000 होना चाहिए, करेक्ट है ना? यस। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस Minus 2000. पक्का। और यहाँ पे माइनस 2000। 2000. और यहाँ क्या? 5000, 2000 plus 3000। Yeah, this is 5000. Okay, which I don't know. What I don't know is U2 and U3. U2 and U3. इसलिए मुझे नहीं पता। And this is equal to 0 and 1000. अब ये बताओ कि तुमको ये सॉल्व करते आएगा क्या? यस सर। मतलब Yes, कैलकुलेटर sir. से सॉल्व कर सकते हैं ना अपन? तो जल्दी से बता दो मेरे को Yes, U2 sir. क्या है? 0.1818. 0. 1818. ओके, और यहाँ पे क्या होगा? 0.2727. 0.2727. अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट द यूनिट्स आर यहाँ पे? mm। Mm, sir, Yes, displacement. they will be. Yes, they will be in MM only, yeah? Because तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो MM में था, न्यूटन पर MM था ना, इसलिए MM में है। Is it okay? Yes, तो sir. मेरा Yes, मुझे sir. क्या क्या मालूम चल गया? मुझे U1, U2, U3 मालूम चल गया। मुझे U1 0 है, U2 0 है। अब मुझे इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने हैं।
अब मुझे इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने हैं. हाउ डू आई फाइंड आउट इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन स्प्रिंग? प्लीज सी दिस नाउ. ये जो मेरा अभी सिस्टम आया, look at this system here, look at this system here. I have to now find out the values of F1 1 and F1 2. ये मुझे निकालना है. Now tell me, at this point of time, do I know U1 and U2? Yes, sir. Yes, sir. This point of time, अच्छा तो फिर मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा? ये बनेगा 1000 नहीं ना? हाँ 1000. This Yes, is sir. 1000 and this is minus 1000 Minus 1000. और यहाँ पे क्या? Minus 1000 Minus 1000. और 1000. ओके एंड दिस विल बी, ये मेरा जो U1 है ये 0 है. अभी तुमने U2 क्या निकाला? Give me the value. 0.1818. 0.1818. 0.1818. ये था ना? ओके. Yes. तो अगर ये ऐसा है तो मुझे ये प्रोडक्ट निकालेंगे. मान लो कि if I find out the product, can I find out the product? यहाँ पे कितना आएगा? What will be the value here? Yes, sir. निकालो 1000 into 0 और 1000 into 0.1818 म्हणजे काय? 181.8 राइट? 181.8. पक्का? ये 181.8. Yes. फिर दूसरा वाला So कितना होगा? minus. हाँ Minus आएगा ना? of course this is minus and this is and this is 181.8. 181.8. हाँ करेक्ट है. ये हो गया. Yes, sir. अच्छा फिर उसके बाद अब स्प्रिंग 2 पे आते हैं. स्प्रिंग 2 पे आ जाते हैं. अब स्प्रिंग 2 पे when you are doing for spring 2 what is happening? 2000. What is K2? यहाँ 2000. 2000. ओके Minus यहाँ पे 2000. minus 2000. Minus 2000. इधर minus 2000. इधर भी 2000. okay and this is multiplied by U2 and U3. what is U2? 0.1818 और यहाँ पे क्या? 2727. 0.2727. okay now it will give me some values. what values will it give me? 2000 into 0.181. हाँ कितना आएगा ये? चलो ये कितना आएगा वैल्यू? कैलकुलेट कर तो बताओ. Minus 181.80 आ रहा है. माइनस 0.181. 181. 181.8. हाँ भाई हाँ. 8 और यहाँ पे वहाँ शायद से प्लस 181.8 है. हो गया. अच्छा व्हाट अबाउट थर्ड वाला? थर्ड वाले में क्या होगा? 3000. इधर क्या? okay and this is going to be multiplied by 0.2727 और यहाँ पे 0 0. और यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी फिर? 818.1. 818 हाँ सर. और यहाँ पे Minus 818.1. ओके पूरा सिस्टम सॉल्व हो गया. Yes, sir. मजा आया क्या? कि कंफ्यूज Yes, हो अभी? sir. No, sir. Yes, sir. ओके सो अभी रिकॉर्डिंग तो ऑन था. यस सो we can put an end to the
lecture by taking your attendance first. किसी ने यहाँ पे चैट पे कुछ बोला है क्या? कौन था? 4-3 क्या है? अच्छा, download attendance. Okay, thank you for attending the meeting. Thank you, sir. Thank you, sir.